So next part we will do concept of activation energy, energy barrier. Now what is activation energy? It is the excess of energy which must be supplied to the reactants so that their energy becomes equal to the threshold energy. So extra energy, threshold energy वो energy होती है which is required by the reactants so that the effective collisions may take place in between them. उतनी energy चाहिए होती है उनको effective collisions के लिए, और जब effective collisions होंगे then they will get converted into products. It is equal. Now what is activation energy equal to? It is equal to the difference between threshold energy of the reaction and the energy possessed by all reacting molecules. There is a particular energy which is possessed by the reacting molecules. Then the extra amount of energy which we have to provide so that their energy may become equal to the threshold energy, that is called as the एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. नाउ लेट अस कंसीडर, पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं. जैसे आपके A and B are the reactants. In between, what will happen? The bonds between A and A, they will break. Bond between B and B will break, and bond between AB and AB, it will start formation. So here bond formation has started, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे bond breakage is occurring, right? तो क्या होगा? उसकी वजह से A B के बीच बॉन्ड बनेगा AB. These are the products which we get. Now if we represent it graphically, here there is potential energy and this is the progress of the reaction. This is ER, energy of the reactants, energy which is possessed by the reactants. A2 and plus B2 are the two reactants. Now what we have to provide, हमें उनको क्या प्रोवाइड करना है ताकि वो उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचे. एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक उनकी एनर्जी पहुंची, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन है स्टार्टेड, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया. एंड देन what will happen when the formation of products will occur, और जब products बन जाएंगे तो energy will obviously it will decrease. और 2AB मतलब this is the products which these are the product which has been formed. So this energy barrier has to be covered. ये energy barrier जो activation का energy का है which is equal to E threshold minus E R, वो EA के बराबर होता है. एंड दिस थ्रेशोल्ड ET माइनस ER हैज टू बी कवर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और ये जब कवर होगा तभी आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो नेक्स्ट वी हैव, ओके, नाउ यू नोट डाउन, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लो the reaction is fast, and if activation energy is high the reaction will be slow. ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो कम एनर्जी देने पड़ेगी तो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, तो रिएक्शन जो है आपकी स्लोली होगी. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ZE माइनस EA अपॉन RT. रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, वेयर Z is collision frequency of binary collisions. Binary collisions means when collisions they occur between two molecules, and this factor E raised to the power minus EA upon RT, this represents fraction of molecules which have energy greater than the activation energy. This is the fraction of molecules which have energy greater than the actual energy, and this fraction of molecules will actually bring about the reaction. They will get converted into products. Now next is, now rate of reaction, it also depends upon orientation factor. एक और factor होता है, एक तो energy factor है
और दूसरा है ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स की, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन्स हो सके. Rate of reaction also depends upon orientation factor, that is the colliding molecules must have proper orientation at the time of collision. An additional factor P is called probability factor or steric factor is inserted in the above expression. And this factor P is called as the probability factor which is inserted in this reaction. Rate of reaction is PZE minus EA upon RT, where P is probability, Z is the collision frequency, and EA, that is the fraction of molecules which have energy greater than the activation energy. Now next factor is on which the rate of reaction depends is presence of a catalyst. Now what is a catalyst? Catalyst कोई भी substance है जो increase करता है, it accelerates the rate of reaction. It itself does not undergo any change and it can be recovered at the end of the reaction. मतलब ये reaction के rate को बढ़ाता है और ये अपने आप it doesn't undergo any change. It does not take part in reaction, or at the end of the reaction you can even recover it. So we have next is our this graph, potential energy. This is potential energy and this is the progress of the reaction. Potential energy and progress of the reaction. और ये वाला ग्राफ हमें ये it is telling us कि कैसे आपका जो कैटलिस्ट है वो लोअर करता है आपके रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को. देखो यहाँ पे दो ग्राफ्स बने हैं. ये ग्राफ जो है ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन जिसमें हमने कैटलिस्ट को यूज नहीं किया है, और ये वाला वो ग्राफ है जिसमें हमने कैटलिस्ट को यूज किया है कैटलाइज्ड रिएक्शन का. तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखिए ये दिस इज द EA जो है EA यहां से लेकर यहां तक, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ uncatalyzed reaction and E-A is activation energy of uncatalyzed reaction. So EA is greater than E-A, that you can see here. आपको दिख रहा है यहाँ पे कि EA जो है E-A से बड़ा है. सो व्हाट क्या का फंक्शन होता है कैटलिस्ट का कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है. ये देखिए ये दिस इज द अमाउंट, ये जो एरो शो करता है लो, दिस इज द अमाउंट बाय विच द एक्टिवेशन एनर्जी हैज बीन लोअर्ड. सो the role of the catalyst is to decrease the activation energy. Next factor is exposure to radiation. Now some reactions they take place very fast if they are exposed to a particular radiation, like light को अगर आप उनको expose करें, photons उन पे bombard करें, then those reactions they take place very fast. So like example is reaction between hydrogen and chlorine. It takes place very slowly in the absence of light, but in the presence of light it takes place very rapidly. So what happens in the presence of the light, the जो molecules होते हैं they absorb energy and effective collisions जो है उनकी activation energy जो है उनकी जो energy है वो increase हो जाती है, और उनके बीच जो collisions होते हैं they acquire their threshold energy, और उनके बीच जो collisions होते हैं वो effective हो जाते हैं. Now next is nature of solvent. Now nature of solvent also affects the rate of reaction. These effects can be studied and the following under the following properties of the solvent. Now what are the effects of the nature of the solvent? क्या effects हैं? Like first is magnitude of dielectric constant of the solvent. Now rate of reaction, it depends upon the magnitude of dielectric constant. So it is equal to log K is equal to A minus B upon D, where A and B they are the constants, D is dielectric constant and K जो है वो आपका rate constant है. तो जो log है rate constant का that is inversely proportional to the dielectric constant, and we get a graph
लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है इसके लिए। वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो लॉग है रेट कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नाउ नेक्स्ट इज पोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में आप रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हो उसकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। A polar solvent increases the rate of reaction in which product formed is more polar than reactants and decreases the reaction rate if product formed is less polar than the reactants. Means a polar solvent, if you use a polar solvent in a reaction, the rate of reaction that will increase if the जो product जो बनता है that is more polar than the reactants. मतलब वो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उस रिएक्शन में वो रिएक्टेंट से ज्यादा पोलर होना चाहिए, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो घट जाता है अगर आप ऐसा सॉल्वेंट, इफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो घट जाता है इफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लेस पोलर देन द रिएक्टेंट्स। फाइन, एग्जाम्पल से आपको इट विल बी मोर क्लियर। इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्राई इथाइलमीन एंड इथाइल आयोडाइड, ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करने को। क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट जो बनता है दैट इज आयनिक इन नेचर, वो पोलर होता है। नाउ अब इस केस में क्या है कि जो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा पोलर है रिएक्टेंट से। सो हियर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज अगर हम पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम बढ़ा दें। अगर हम ज्यादा पोलर सॉल्वेंट यूज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज बिकॉज द प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड है आपका अमोनियम सॉल्ट दैट इज मोर पोलर, वो ज्यादा पोलर है आपके रिएक्टेंट से। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, ऑन द अदर हैंड acetic anhydride and your ethyl alcohol, they give rise to ethyl acetate. एसिटिक एनहाइड्राइड और इथाइल एल्कोहल हम यूज करते हैं टू फॉर्म इथाइल एसिटेट। नाउ इथाइल एसिटेट दैट इज लेस पोलर देन दीज टू रिएक्टेंट्स। एसिटिक एनहाइड्राइड और इथाइल एल्कोहल से आपका इथाइल एसिटेट जो है वो कम पोलर है। तो ये जो रिएक्शन है अगर इसमें आप सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी को बढ़ाते हैं देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। सो दिस रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का क्या फर्क पड़ता है आपकी इस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो इसमें हम 3 केसेस पढ़ेंगे। First case is the reactants are appreciably solvated but activated complex is not. पहला केस ये है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो सॉल्वेंट में अच्छी तरह सॉल्वेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से दे आर सॉल्वेटेड, बट जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है इन बिटवीन जब रिएक्शन हो रही होती है, मैंने आपको बताया है पहले भी, इन बिटवीन देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट। वो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उस स्टेट में आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जहां बॉन्ड्स जो है रिएक्टेंट्स के बीच टूटते हैं और प्रोडक्ट्स के बीच जो बनते हैं उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो क्या होता है, here the reactants are appreciably solvated but the activated complex is not. जो आपके reactants हैं वो अच्छे से solvate हैं but आपका जो activated complex है that is not solvated। तो इसमें क्या है, this is potential energy and this is the progress of the reaction। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो एनर्जी आ गई आपके रिएक्टेंट्स की। तो क्या होगा इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज लोवर्ड। ये तो इनकी ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन सॉल्वेशन के बाद क्योंकि द रिएक्टेंट्स आर एप्रिशिएबली सॉल्वेटेड तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की ये और कम हो गई। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। इस केस में देखिए E' इज ग्रेटर देन EA उनकी एक्टिवेशन एनर्जी तब थी जब वो सॉल्वेट नहीं हुए थे। तो हियर E' इज ग्रेटर देन EA।
सो इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज लोअर्ड, ये देखिए कम हो गई। एज अ रिजल्ट इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट हैज इंक्रीज्ड एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज। सो इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। Then next we have B. When activated complex is solvated but the reactants are not, means when जब activated आपका complex है वो solvated है, मतलब क्या होता है, जो activated complex आपका बनता है वो solvate है, properly solvate हो रहा है आपका किसमें, इसमें solvent में, but reactants are not solvated. So इस केस में क्या होगा, in this case potential energy of activated complex decreases due to solvation. The energy of activation of the the energy of reactivation of the reaction in decreases and the rate of reaction increases. ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है जब आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA है, लेकिन अब आपने सॉल्वेंट ऐसा यूज किया जिसमें आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सॉल्वेट हो गया, ये देखो, तो क्या हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, और अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो क्या होगा, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सो इन दिस केस E-A is less than EA. Then next we have both reactants and activated complex are solvated. अब इस केस में क्या है कि दोनों ही आपका रिएक्टेंट भी और आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी सॉल्वेट हुए हैं। तो ये देखिए अगर आपका रिएक्टेंट सॉल्वेट हुआ है तो जैसे पहले याद करो फर्स्ट केस में, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस ड्यू टू सॉल्वेशन, दोनों की ही एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी डिक्रीज होगी और इसकी भी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। आप बोलोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट रही है ना। यस दिस इज ट्रू, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल डिक्रीज, बट आपको एक चीज याद रखनी है केस नंबर 1 की, कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो भी डिक्रीज होती है। तो नेट इफेक्ट क्या होता है इसका, द नेट रिजल्ट इज इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नेट रिजल्ट है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की वो बढ़ेगी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। थैंक यू।